this question, the non-cooperation movement, how it took its parts. So you have to explain all the areas in our country in which this movement was spread. Okay. First of all, you will explain about the year 1921 non-cooperation movement was started. Okay, Prabal, yes. Yes, keep your mic on. हाँ जी बेटा. Yes, Prabal. In the country showed different reactions given below. At Khadi in Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, Yes, ठीक है. First of all, you will required shops were picketed. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. In Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Caliphate call. In Bengal, too, the Caliphate non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. In Punjab, the Akali agitations of the Sikhs sought to remove corrupt mahants supported by the British from their gurdwaras. People thought of Gandhiji as a kind of messiah, as someone who could help them overcome their misery and poverty. Gandhiji wished to build high-class unity and not class conflict, yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agriculture laborers believed that he would provide them with the land. At times, ordinary people credited Gandhiji with their own achievement. Okay, you have to explain in very easy language. ठीक है. तो आपने क्या करना है, कुछ वर्ड्स आपने जो बोले ना, जैसे खिलाफत, अकाली. ठीक है, खिलाफत मूवमेंट है बेटा ये, एंड अकाली द ऑर्गेनाइजेशन इन पंजाब. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं. तो इट मीन्स यस, वेल एक्सप्लेन. आपने जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुई, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. आप सारी स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स याद कर लो. एक याद करो, गुजरात. गुजरात में प्रॉब्लम क्या थी? दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पट्टीदार पीजेंट्स, दैट दे ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन. देयर फाइट वाज रिलेटेड टू द हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यूज डिमांडेड बाय द ब्रिटिशर्स. उनको हाई रेवेन्यू देने पड़ते थे, सो दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नंबर 2 आपने बताना है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट जो सत्याग्रही थे, they broke forest laws. They enter in the forest because they were not permitted in the to enter in the forest areas. So non-cooperation movement for them, meaning of non-cooperation for them was to enter in the forest. Okay. Then after that बंगाल में क्या हुआ था? खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन अलायंस. ठीक है, काफी जिसे हम कहते हैं कि बंगाल में लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया. देन पंजाब अकाली ऑर्गेनाइजेशन, दे वांटेड टू रिमूव करप्ट महंस इन द गुरुद्वारास, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो महंस हैं ये गुरुद्वारास में जो भी उसकी जो मनी है उसको मिसयूज कर रहे. असम में जो टी प्लांटेशन ऑनर्स थे, उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? टू लीव द टी गार्डन्स बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड मैनी broke the contract, but still they were punished and they were captured by the police. ठीक है, तो according to them Mahatma Gandhi ji, they took the different meaning of non-cooperation by their own way. ठीक है, some considered him as Masiha, some considered him as a, you can say, satyagrahi, some considered him as a liberator who could give them independence. So that's why all participated in non-cooperation movement with full enthusiasm. ठीक है, क्लियर? हाँ जी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ. ठीक है, आपने इसमें बताना है व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू चूज टू ब्रेक सॉल्ट लॉ.
उन्होंने सॉल्ट ही क्यों चुना, और सॉल्ट लॉ क्या था? इसमें अपनी 3 चीजें बतानी है। एक तो सॉल्ट लॉ क्या था, नंबर 2 इस पे मोनोपोली किसकी थी, एंड नंबर 3 महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को कैसे वेपन लिया और सॉल्ट के बेसिस के ऊपर कैसे लोगों को इकट्ठा किया। ये सारा, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए। लेट्स सी हु विल गिव द आंसर। ओके, हाँ जी जयवंत, यस बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, Gandhiji were very much worried about the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Gandhiji thought that it was sinful to tax salt because it is an essential item of our food and is required equally by the rich and the poor. Hence, he decided to break this law in anticipation that people from all walks of life would extend their support. Needless to say that Gandhiji's salt march became very successful. यस। तो सबसे पहले आपने ईयर बताना है, विच ईयर ही चूज, 1930। महात्मा गांधी जी ही चूज 1930 ईयर, एंड दिस इन दिस ईयर ही वांटेड टू स्टार्ट अ मार्च। मार्च का मतलब क्या था, इसमें पैदल लोग यात्रा करते हैं ना। मार्च किसके लिए था? मार्च टू अपोज सॉल्ट लॉ, यानी कि इन ईयर 1930 महात्मा गांधी जी स्टार्टेड अ मार्च, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है, टू अपोज सॉल्ट लॉ। What was this salt law? According to this law, state has, यानी कि British government has its monopoly to manufacture salt. No Indian could. कोई इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकता था, अगर बनाते थे तो उनको पनिश किया जाता था। थर्ड थिंग, taxes were imposed on various commodities and salt was one of them. सॉल्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था लोगों को, both rich and poor. तो it was a necessity item, that is necessary for all. ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इट इज सिंफुल, अगर एक नेसेसिटी आइटम के ऊपर भी एक पुअर पीपल जो हैं उनको टैक्स देना पड़े तो दैट इज नॉट गुड, एंड गवर्नमेंट शुड टू टेक देयर डिसीजन बैक. सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जी ही स्टार्टेड दांडी मार्च. अल्टीमेटली देयर मोटिव वाज टू ब्रेक दिस लॉ. उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, तोड़ना था. तो इस लॉ को ब्रेक करने के लिए व्हाट ही डिसाइडेड मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम टू दांडी. साबरमती आश्रम से दांडी जाने के लिए कितने दिन उन्होंने ट्रेवल किया? 10 डेज. कितने माइल्स ट्रेवल किया? 240 माइल्स. ठीक है, एंड मैनी फॉलोअर्स सपोर्टेड. स्टार्टिंग में उनके साथ 72 थे इन द इनिशियली, एंड मैनी ज्वाइंड. एंड व्हेन ही रीच द दांडी कोस्ट, जब वो दांडी कोस्ट गए, वेयर व्हाट ही डिड, ही बॉइल्ड द सी वाटर, manufactured salt. ठीक है, and with this he broke the salt law. उन्होंने salt law को तोड़ा, and many people also joined and many people they manufactured salt. This was called Dandi March. इसको क्या कहते हैं? This was starting beginning of civil disobedience movement. इसको एसोसिएट किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है जिसमें सिटीजन्स जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसको ब्रेक करती है. So that's why Mahatma Gandhi ji decided to break the salt law, because he wanted to support both poor people and rich, because salt एक necessity item थी, उसके ऊपर टैक्स देना जो था that was sinful. It is clear? Any doubt? Okay. Next question is, discuss developments from 1937 to 47, and इसमें आपने बताना है which led to creation of Pakistan. हमने हिस्ट्री बतानी है, हिस्ट्री का वो पार्ट बताना है जिसमें पाकिस्तान जो है उसकी क्रिएशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. विच वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान अदर देन प्रबल? आस्था, अक्षिमा, अन्वय, अवनी, वानी, भाविका, गुंदीप, जयवंत, जसलीन, मनस, सुमेधा. सो मेनी स्टूडेंट्स. यस, यू हैव रेड द चैप्टर. करणवीर, वरुण, तनुष्का, रोहित, राघव, पुलकित, नवरूप, महक. हाँ जी महक. व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया? आपने हिस्ट्री पढ़ी है बेटा? कीप योर माइक ऑन. चैप्टर पढ़ा आपने? वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. जस्ट टेल मी हिंट्स बताओ बच्चे, विच पॉइंट्स वी हैव टू कवर. कीप योर माइक ऑन.
यस महक। Any other student? Astha, Akshima, Anve, Bani, Bhavika. Yesterday we have discussed. Try to give the answer. Some hints you have to write and then you have to explain. Okay, Bani. Yes, keep your mic on, beta. हाँ जी beta. The development of 1937 to 47, which led to the creation of Pakistan, are given below. First, a two-native theory. Intentionally, the Muslim League never mentioned Pakistan to be a nation of Muslims. However, एक मिनट, one by since one. Wait, धीरे धीरे है ना, one point I will discuss. आपने बताया टू नेशन थ्योरी, वेरी गुड. इट मीन्स इसमें आपने टू नेशन थ्योरी बतानी है. दिस डिमांड टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना. व्हाई ही गेव? बिकॉज ही कंसिडर्ड दैट मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया एंड दे विल नेवर गेट रिकॉग्निशन. यानी कि उनको ये लगता था कि हिंदू जो है वो नंबर 1 पे रहेंगे, मुस्लिम्स हमेशा सेकंड फिडर यानी कि 2 नंबर पे रहेंगे, और इसीलिए उनको माइनॉरिटी ट्रीट किया जाएगा. सो दैट्स व्हाई उनको ये लगा टू नेशन का मतलब है टू पीपल, टू नेशन, टू कंट्री शुड बी देयर. सो दैट्स व्हाई ये धीरे धीरे 1940, ड्यूरिंग 1940 दिस डिमांड केम टू नेशन थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ टू नेशन थ्योरी. इससे पहले में हाँ जी ये बताना है मुस्लिम लीग पार्टी मेन जिसे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो किस पार्टी के द्वारा रखी गई थी? मुस्लिम लीग, जो पार्टी 1906 में बनी थी एंड इस पार्टी ने मेन डिमांड रखी थी. हाँ जी वेरी गुड बानी. अदर पॉइंट्स? हाँ जी. Second, provincial election of 1937. In this, the elections were a decisive factor of Muslim League to decide that Muslims are a minority in India and they have to. के लिए हाँ ठीक है, आपने एक ईयर बताया, बहुत अच्छा है. 1937 आपने ईयर बताया कि 1937 में बेटा जब हमारी कंट्री में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में ठीक है कांग्रेस को सीट ज्यादा मिली, कांग्रेस विद द मैक्सिमम सीट्स एंड मुस्लिम लीग विद लेस. मुस्लिम लीग को बहुत कम सीट्स मिली. तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी कंट्री में हमेशा ही जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में रहेंगे एंड दे विल नॉट बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. दिस वाज अ रीजन व्हाई दे वांटेड टू लिव डिफरेंट. वो डिफरेंट रहना चाहते थे, अलग एरिया या अलग स्टेट या अलग जो है वो डिमांड कर रहे थे. हाँ जी. एनी अदर पॉइंट? Fifth, between Congress and Muslim Leagues, when Congress rejected the Muslim League's offers for a joint Congress League's government in United Provinces, the leagues decided to part way forever. Yes. जब 1946 में कैबिनेट मिशन हमारी कंट्री में आया और इससे पहले प्रोविंशियल के इलेक्शंस भी हुए थे, तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने ये एक तरह से प्रपोजल रखा था कि ज्वाइंट यानी कि दोनों मिलकर जो है काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट बनाए, लेकिन कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग जो है वो 1946 उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो डिक्लेयर किया. And during this time, many Hindu and Muslim families, they attacked on each other. Many people, they were killed. Innocent people are also killed. And violence spread in different parts of the country. ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ. एंड मैनी पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. Hindu shifted from Pakistan and many Muslims shifted from India to Pakistan. And that's why at that time it was very difficult for them to live. So this was the only solution to divide the country, and this led to the partition of our country in 1947 and Pakistan was born. Clear? Clear? Any other point, Pani, you want to give? Mass agitation, the failure of cabinet minister of 1946 led to the mass agitation led by Muslim leagues. And hence Pakistan was born. वेरी गुड. तो आपने बहुत इजी लाइंस में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये पॉइंट्स आपके इस आंसर में होने चाहिए. ठीक है, तो आपने सारा स्टोरी बतानी है कि हाउ पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के पीछे मेन क्या रीजन है. पार्टी का पूछे तो मुस्लिम लीग. ठीक है, अगर किसी पर्सन का नेम है तो मोहम्मद अली जिन्ना. थ्योरी है तो टू नेशन थ्योरी. ठीक है, ये आपने जरूर बताना है.
और इलेक्शंस की बात करें तो आपने इलेक्शंस बताने हैं कौन से ईयर, 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस और 1946 में जब इलेक्शंस हुए थे, दोनों ही इलेक्शंस में हमेशा कांग्रेस ही जीती थी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के मेंबर्स कम जीते थे और इसीलिए रीजन क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी वो पावर में आना चाहती थी। उनको ये लगता था कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें पावर नहीं मिलेगी और इसीलिए दे डिमांडेड सेपरेट नेशन और धीरे धीरे पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। एंड डिवाइड एंड पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, और जिसके कारण भी हमारी कंट्री में रॉयट्स वायलेंस स्प्रेड हुए ऑन लार्ज स्केल। एंड इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर? एनी डाउट? एनी अदर स्टूडेंट? Yes, any other student? मैम यस हाँ जी, मैम इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। सेम आंसर जो मैंने बोला, सेम आंसर है बेटा आपका। मैम यस, द डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 to 1947 which led to the creation of Pakistan are given below. A two nation theory intentionally the Muslim वेट नॉट इन लाइंस, आपने प्रॉपर जस्ट हिंट्स में बताओ मुझे, वो तो आपने लिखना ही है, जस्ट हिंट्स में बताओ बेटा, विच हिंट्स यू विल कवर, शॉर्ट में बताओ। मैम टू नेशन थ्योरी। हाँ, टू नेशन थ्योरी आपने इसमें रेफरेंस देनी है। और सेकंड मैम प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। वेरी गुड। हाँ, ऐसे बताओ, जब भी आंसर देना ना आपने ऐसे पॉइंट्स में नहीं, हेडिंग्स में आंसर दो, लाइंस में जस्ट। मैम हाँ ठीक है। और रिफिल्ड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। हाँ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे कि वो कभी भी जॉइंट इकट्ठी मिलकर गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं थी, तो ये भी उनके बीच में एक डिफरेंस था। हाँ जी, जिसके कारण हिंदू प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946। हाँ, 46 के इलेक्शंस बताने कि 46 के इलेक्शंस में भी कांग्रेस और लीग के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़े और जिसके कारण जो लीग थी वो अलग से पाकिस्तान की डिमांड करने लगी। हाँ जी, देन failed talk where no discussion could turn out to be successful, where both Congress and Muslim League could came to conclusion of a single nation. कैबिनेट मिशन प्लान हमारी कंट्री में आया, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो सजेशंस दिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर उन सजेशंस के ऊपर भी किसी भी तरह से उनकी एक राय नहीं थी, ठीक है। और फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन फेल हो गया। मुस्लिम लीग डिसाइडेड डायरेक्ट एक्शन डे टू कॉल ऑन 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि वी वांटेड पाकिस्तान, ठीक है। एंड जैसे ही उनकी डिमांड जो है वो हुई तो पूरी कंट्री में नदर्न पार्ट में स्पेशली पीपल दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन ईच अदर, and that's why riots broke out in Calcutta and you can say in several parts of the country, and resulting the death of thousands of the people. And in spite of that we can say partition held and our country was divided into 2 parts. Clear Prabal? ठीक है? Yes ma'am. Okay, so now we have concluded the chapter. If any point, any paragraph, any line, any word is not clear to you, then we can discuss, otherwise I will start next chapter. I'm again asking you, Prabal, Astha, Akshima, those students who have joined, Anvay, Avni, Pani, Bhavika, Gundeep, Jayavant, Jasleen, Manasva, Medha, Mahak, and some of the students they have joined. Navroop, Paramjeet, Prabal, Pulkit, Raghav, Hanji, Rohit, Tanushka, Karanveer. Any doubt, beta? If any doubt is there, then you can ask. Otherwise, I will start next chapter. Because we have completed question answers, we have completed the chapter. Okay. So now we will start next chapter, no doubt. Thank you, Bani, Bhavika. We will start next chapter, India after independence. Okay. This chapter is also very interesting because now we will study our Indian history after independence. हमने अब इसमें पढ़ना है कि 1947 के बाद जब इंडिया को इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस के बाद, इतने लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण, रैलीज, मूवमेंट, सत्याग्रह, आंदोलन, ठीक है, इतने जो है वो एफर्ट्स के बाद आप खुद सोचो कि 15 अगस्त 1947 का जो डे होगा वो कितना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट डे होगा, व्हेन पीपल दे सॉ देयर नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट।
दैट डे वाज रियली, और आज भी हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं। नो डाउट वेरियस पीपल दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, तो वो उनकी फैमिलीज या वो लोग आज नहीं है, ठीक है। बट वी आर लकी दैट वी आर बॉर्न इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर बॉर्न इन अ इंडिपेंडेंट कंट्री। हम लोगों को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो उनको करना पड़ा, ठीक है। तो हमने अब उनकी स्टोरीज पढ़नी है कि उनके स्ट्रगल के बाद 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले गए, तो एट दैट टाइम इंडिया ने अपने आप को कैसे संभाला। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इतने कॉन्टिन्यू ईयर्स 203 ईयर्स तक हमारी कंट्री उनके अंडर थी। अब व्हेन वी गॉट फ्रीडम, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू control all the different sections, areas, many problems they faced. अब सबसे पहले हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमें एक ऐसी कंट्री मिली जो डिवाइडेड कंट्री थी, ठीक है। और 1947 के टाइम पीरियड में जो डिस्प्यूट्स हुए, राइट्स हुए, तो वो एक काइंड ऑफ एक ट्रेजिक हिस्ट्री थी। मीन्स सम पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज बहुत से लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, जिनकी फैमिलीज उनसे दूर हो गई, जिनके फैमिली मेंबर्स उनसे दूर हो गए, उनके लिए ये इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना बहुत मुश्किल था। बिकॉज उनको अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं या बहुत सी ऐसी उनकी जो मेमोरीज हैं, उनको अपनी कंट्री छोड़, अपना एरिया छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा, तो दूसरे एरिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट वो इंडिपेंडेंट कंट्री में थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। वो अपनी लैंड, अपने फार्म्स, अपना घर सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आए। Many Hindu they shifted from Pakistan to India, and many Muslims they shifted from India to Pakistan. So for them, this you can say independence was not fruitful. So it was, you can say, very time taking. उनको बहुत टाइम लगा यहाँ पे एडजस्ट होने में, ठीक है। और ये हमने अब मेन प्रॉब्लम्स पढ़नी है कि हमारी जो नई गवर्नमेंट यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, चैलेंजेस की फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक ऐसा नेशन मिला जो नो डाउट न्यूली बॉर्न था, लेकिन एक डिवाइडेड था। डिवाइडेड नेशन का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए। अब उसके बाद किस तरह से जो नई गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान की अलग से गवर्नमेंट बनी, इंडियन गवर्नमेंट अलग से बनी, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है। तो ये हमने ग्रेट चैलेंजेस पढ़ने हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही क्या आई? पार्टीशन की। पार्टीशन, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है? अब बहुत इजी लाइन में इसको बताओगे कि पार्टीशन की प्रॉब्लम क्या थी। ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, मोर देन 8 मिलियन रिफ्यूजीज। कौन होते हैं रिफ्यूजीज? Those who came from Pakistan to India, कितने? More than 8 million। 8 मिलियन बताना है आपने, वो तो वैसे ही है लेकिन इससे भी ज्यादा थे नंबर्स। 8 मिलियंस रिफ्यूजीज केम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इससे भी ज्यादा जो लोग थे वो पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आए, उनको रिफ्यूजीज कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके पास जब वो यहाँ पे आए, उनको कैंप्स, जैसे मैंने आपको मिल्खा सिंह की स्टोरी बताई थी ना, तो ऐसे ही मिल्खा सिंह की तरह ही बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जो हिंदू फैमिलीज थी, सिख फैमिलीज थी, जो पाकिस्तान में रहते थे, बट नाउ दे हैव टू शिफ्टेड, उनको यहाँ पे आना पड़ा। उनके पास अपनी लैंड नहीं थी, वो अपनी लैंड छोड़कर आए, अपने घर छोड़कर आए, ठीक है। और कई तो आए भी लेकिन उनके पूरे फैमिली मेंबर्स उनके साथ नहीं है, रास्ते में जो है उनके ऊपर अटैक हुआ, तो ये मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैनी रिफ्यूजीज आल्सो केम। और जब ये रिफ्यूजीज हमारी कंट्री में आए तो हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम थी कि उनके पास लैंड नहीं थी, उनको कहाँ पे घर दिए जाएं, कैसे उनको जॉब दी जाए, कैसे उनको खाना दिया जाए, और कैसे उनकी मेडिकल हेल्प, ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट चैलेंज क्या था? चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, जिसमें आपने ये बताना है कि मैनी रिफ्यूजीज दे केम फ्रॉम पाकिस्तान इन आवर कंट्री, एंड इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि दे वर होमलेस, जॉबलेस थे, पुअर थे, ठीक है। तो इसको फिर हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
इसको कैसे बताएंगे हम? फिर हमने एक लाइन में बताना है दैट इन इंडिया जो न्यूली रिफ्यूजीज थी, बल्कि इंडिया में भी, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज अ न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ब्रिटिशर्स ने हमें 300 इयर्स तक एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। तो एट दैट टाइम इन इंडिया मैनी पीपल दे वर पुअर, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे थे जो पुअर थे, ठीक है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं थे, दे वर अनएम्प्लॉयड, उनके पास काम नहीं था, ठीक है। तो इवन कंट्री में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज भी बहुत लार्ज स्केल पे नहीं थी। तो हमारी कंट्री उस टाइम पीरियड में, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी कंट्री थी जो एक नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, लेकिन उसमें लोग जो थे दे वर नॉट रिच, दे वर अनएम्प्लॉयड, दे वर पुअर एंड दे वर फेसिंग स्टारवेशन, फूड शॉर्टेज ऐसी प्रॉब्लम थी, और मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट नहीं किए जाते थे, एग्रीकल्चर के मेथड्स भी बहुत पुराने थे, फूड शॉर्टेज थी, तो जिसके कारण मेन हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स जो है वो उस टाइम में फेस करनी पड़ी, ठीक है। देन फिर थर्ड हमने पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी? जिस टाइम पे में हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पे में बहुत से ऐसे किंग्स थे, क्वींस थे, या बहुत से ऐसे नवाब थे जो ब्रिटिशर्स के फ्रेंड्स थे एंड दे वर लिविंग इंडिपेंडेंट। वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उनको इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उनको अपने अपने एरियाज में इंडिपेंडेंट रूल करने की परमिशन दी हुई, और बदले में वो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या देते थे? टैक्स या ट्रिब्यूट देते थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स थी, मोर देन 500 से भी ज्यादा ऐसे किंग्स थे, नवाब्स थे, जो कि ब्रिटिश जो है वो गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में दे वर लिविंग इंडिपेंडेंटली। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? जब इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इनका क्या होगा? ये प्रिंसली स्टेट्स कहाँ जाएंगे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाते जाते इनको इनके अपने, जिसे हम कहते हैं, डिसीजन पर छोड़ दिया कि वेदर दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, दैट इज अप टू देम, ठीक है। उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अगर वो इंडिया में जाना चाहते हैं तो वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अ मेन प्रॉब्लम कि वो महाराजा या नवाब या जितने भी किंग्स थे वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने किंग्स थे, लेकिन इंडिया में तो उस टाइम किंगशिप नहीं थी, क्योंकि इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, इलेक्शंस होने थे कंट्री में, और किंग्स और डेमोक्रेसी एक्ट इकट्ठा कैसे चल सकता है ना? मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पीरियड में कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी वो इंडिया की बाउंड्रीज, यानी कि वो इंडिया, अब इतनी सारी स्टेट्स हैं तो इंडिया के अंदर उनकी नेबरिंग जो है वो बाउंड्री साथ में, तो हमेशा ही वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहने को तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कभी भी दूसरी कंट्रीज वहां पे अटैक कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या हो सकता था? हमारी इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में हो सकती है। और ये मेन प्रॉब्लम थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कैसे ऐड किया जाए, कैसे इनको कन्विंस किया जाए कि वो इंडिया का पार्ट बने। तो नो डाउट बाद में वल्लभ भाई पटेल, जिसका आपने सुना होगा कि गुजरात में बहुत टॉलेस्ट स्टैचू है, उनके एफर्ट्स के कारण ये प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स इंडिया में जो है वो आने को रेडी हो गए, और बहुत सी मीटिंग्स की गई, तब जाकर उन्होंने इंडिया में आने को तैयार हुए, और वो भी इस कंडीशन पर भी इंडियन आर्मी उनकी प्रोटेक्शन करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, और बहुत सी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस माननी पड़ी उनकी, है ना। और ये मेन प्रॉब्लम थी हमने, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ठीक है। फिर एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हमारी अपनी कंट्री में ही बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? नंबर 4, रीजनल डाइवर्सिटीज, रीजनल डाइवर्सिटीज। हमारी कंट्री यानी कि रीजन वाइज, स्टेट वाइज देखा जाए तो इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो फर्टाइल डेजर्ट एरियाज हैं, कुछ स्टेट्स बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है। तो ये भी मेन प्रॉब्लम थी कि हमारी सारी कंट्री एक जैसी नहीं है, हर कंट्री के अपने अपने जोग्राफिकल फीचर्स हैं। और फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत, जिसे हम कहते हैं कि फर्टाइल हैं, तो वहाँ का जो है वो एटमॉस्फेयर या वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी साउंड था, रिच था। कुछ स्टेट्स के लोग बहुत पुअर थे, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज या फर्टाइल सॉइल ना होने के कारण वहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर काम नहीं है, जॉब नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उस टाइम पर में आई कि हमारी अपनी ही कंट्री में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एक जैसी जो है वो सिमिलैरिटीज ना होने के कारण, रीजनल डाइवर्सिटीज के कारण भी जो है वो डेवलपमेंट के
जो चांसेस थे वो एक जैसे सेम नहीं थे, ठीक है। फिर हमने क्या बताना है, डिस्प्यूट्स, रिलीजियस, आपने ये बताना है रिलीजियस डिफरेंसेस, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस के हो जाने के बाद भी हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम जो डिस्प्यूट थे वो खत्म नहीं हुए, ठीक है। हमारी कंट्री में अभी भी जो था वो हिंदू मुस्लिम जो डिस्प्यूट थे वो चल रहे थे, हाई कास्ट एंड लो कास्ट, ठीक है। ये एक तरफ हमारी कंट्री में हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट जो है, लोअर कास्ट वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, मेजोरिटी थी हिंदुइज्म की और इसीलिए माइनॉरिटीज जो थी दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड लैंग्वेज, फिर हमने बताना है 6 पॉइंट बता सकते हो, लैंग्वेज इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरी कंट्री के लिए कौन सी लैंग्वेज रखी जाए, बिकॉज ईच स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, पूरी कंट्री के लिए कॉमन लैंग्वेज क्या रखी जाए, इतनी बड़ी कंट्री और कितनी सारी लैंग्वेजेस थी, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेजेस। तो अगर सपोज अगर हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाता तो साउथ इंडिया के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, उनको सिर्फ अपनी मदर टंग जैसे तमिल तेलुगु आती है, उनको हिंदी नहीं आती, या तो उनको इंग्लिश आती थी या उनको तमिल तेलुगु आती थी। तो कैसे उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जाए, क्या पॉलिसी हो लैंग्वेज की, गवर्नमेंट कैसे लैंग्वेज पॉलिसी बनाए ताकि हर तरह के लोग सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में विलेजर्स, फार्मर्स वो भी बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, ठीक है, दे वर नॉट रिच, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, दे डिपेंड अपॉन द मानसून्स, उनके इरिगेशन के जो मेथड्स थे वो बहुत पुराने थे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बहुत पुराने थे, एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन थी वो भी साइंटिफिक नहीं थी, मैनुअल होती थी ज़्यादा, और लोगों को एजुकेशन, स्कूल्स प्रॉपर नहीं थे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ठीक है। ये सारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि नो डाउट वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट स्टिल मतलब हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी दैट वी हैव टू फेस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। इसके साथ ही आपने ये बताना है कि immediately after 1 year on 30th January 1948 Mahatma Gandhi assassinated and he was, you can say, shot by Nathuram Godse, ठीक है। नाथूराम गॉडसे जो थे उन्होंने जो महात्मा गांधी जी प्रेयर से आ रहे थे तो उस टाइम पीरियड में ये भी एक हमारी कंट्री के लिए एक डीप लॉस था, ठीक है। दैट एक ऐसा पर्सन जिन्होंने 1915 से, आपको याद होगा ना 1915 व्हेन ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड कितने सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट्स लॉन्च की, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के 1 साल यानी कि उनका जो टाइम पीरियड, आप ये सोचो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948, ठीक है, सिर्फ यही टाइम उन्होंने देखा और इंडिपेंडेंस को वो एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे में इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स, क्लियर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम चैलेंजेस जो हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लियर।